Let me take starting, GB. So we have topic: should women be allowed in combat role in army? So the topic is already a question. We have to answer this, or we have to put our perspective. So according to me, if I'm seeing all it around, a few days back, Modi government tweet on this and say anything on this, and they said this is not the right time to do this, or women are not biologically good to serve the Indian army as in combat role. So we should start on this topic. Um, I'm going to share my views on the women should be allowed in the combat role in the army or not. Um, um, from the earlier time after the independence, women were not allowed in the army at any post. But by 1992, they were given officers ranks in the army. But after that they did extremely their best in the army, and but at this time the problem rises that they earlier they were by now also they are only given permission to be in non combat forces. That is not that they will not face enemy, but they will be only in the support roles. So many of the women, mostly all the women, wanted equal to men to be in the combat forces. But there are a lot of factors like will the society will the nation there is a danger of being when they are being when the soldiers are being posted gone to combat. There is a danger of get imprisoned, and after that the enemy will return their body beheaded. So or the society will ready to accept this. What will the environment of the nation if a woman if the enemy return a woman's body beheaded? The nation will ablaze. So keeping these all factors in mind, the women's at this time at present are not being allowed in the combat force, but later on as we see their entry is being allowed in the very initial stage they were not allowed, but after some time slowly coming in they are being posted near the LOC also. So I think within few coming years they will also be they will also be allowed in the combat forces. So I don't think that they will be uh, they will not be allowed it, but after some time I think the army will also take them into, but the government is not making such policies or giving them time about when they will go to the army. The army is not refusing to take women in the combat forces, but the government is not making such, the support is not giving permission to the women to be in the combat forces. So reference to the for the acceptance of the women in the combat forces, but the government and the Supreme Court is not making such policies that will take them to the combat forces in the army. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमें ये टॉपिक चलाना होगा तो पहले हमें जो लोग यस बोल रहे हैं और जो लोग नो बोल रहे हैं तब जाके टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे ना यस बोल रही हूँ ना नो बोल रही हूँ, कोई ऐसा है जो यस बोल रहा है, मैं चाहती हूँ उसके साथ टॉपिक करना। ठीक है, ऐसे तो सब चुप ही बैठे, कोई है जो यस बोल रहा है वुमेन शुड अलाउड। I think we are doing the group discussion, and in group discussion there is no two. I mean no yes or no. We discuss wholly on a topic, and राइट। we come to ऐसा a है ऐसा है conclusion. ऐसा है देखो, कृति और संगम, कृत्य संगम ऐसा होता है, जीडी में ऐसा होता है Yes, कि sir. पहले यस और नो नहीं होता है। जब आप लोग सभी अपने व्यूज अपने प्रेजेंट करते हैं Yes. तब ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, वहां पर एक दो ग्रुप बन जाते हैं, फॉर में और अगेंस्ट में। वो कौन देखता है? वो जो आपका जीटीओ बाहर बैठा है वो देख रहा है, इज सीइंग यू। 10 से 12 मिनट का टाइम होता है, उसमें फॉर और अगेंस्ट में होता है उधर पे। तो उसमें यह नहीं है कि आप फॉर में बोल रहे हो तो
आप सिलेक्ट हो जाओगे, या आप अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे. मेन थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल, how you present them, how you convince others, how you are being tactful there, what is your knowledge, how you convince others, persuade others, okay, and take them on the same board. That is important. Okay. ये नहीं है कि किसी ने मतलब 12 मिनट की जीडी में को 8 मिनट बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पॉइंट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है. तो वहां पर आपका ऐसा है कि पहले कभी नहीं पूछते हैं कि कौन अगेंस्ट में कौन फेवर. जब आप बात करते हो ना, पता लग जाता है वहां पर. तो आप देख लो ना किस साइड में आप, उसमें अपने व्यूज चेंज भी कर सकते हो. आप ये भी हो सकता है अगर आप पहले फॉर्म में थे तो आप और लोग क्या आगे अगेंस्ट में जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, बट लेकिन ग्रुप को देखते हुए मैं इस बात से सहमत हूँ या एग्री विद देम कि हाँ ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आप ग्रुप के साथ जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन उधर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपकी कन्विंसिंग स्किल्स हैं, नॉलेज थोड़ी बहुत पीछे से. तो पहले नहीं पूछते उसमें कि कौन फॉर्म में, कौन अगेंस्ट में. आप अपने व्यूज रखिए, दूसरे भी आएंगे तो आपको पता लगता रहेगा हाँ ग्रुप में किसकी क्या सोच है, ऐसे पता लगता है. तो उसमें लास्ट में आप बोल सकते हो कि हाँ मतलब ग्रुप्स के व्यूज देखते हुए लगता है कि मोस्टली लोग चाहते हैं कि गर्ल्स को कॉम्बैट रोल में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी, हमें गवर्नमेंट को ये प्रावधान करने पड़ेंगे, सोसाइटल चेंज मांगते हैं, इस तरीके से आप रख सकते हो. ओके कंटिन्यू, फिर भी कंटिन्यू. Okay, so the The people where the Jawans and the Jawans accept the women orders. There they have to first of all try or try to get the woman there for. I'm sorry, I'm not able to express. Okay. Don't say like that. Don't say like that. Sangam. Sir, Okay. Let me get the preview. Let me get to the preview of this situation. Okay. आर्मी में ऐसा नहीं है कि लेडीज पहले से नहीं थी. आर्मी में लेडीज को नर्सेज के तौर पे पहले से लिया जाता था. And situation changed in 1992 when they were enrolled as officers. इसको बोलते थे स्पेशल एंट्री स्कीम, जिसको बाद में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन बना दिया गया. और 2008 से हाँ पहले इसको स्पेशल एंट्री स्कीम कहते थे, अभी इसको हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे कहते हैं. 2008 में इनको परमानेंट कमीशन दिया गया जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में और आर्मी एजुकेशन कोर में. उसके बाद 2018 से इनको अभी इन्होंने क्या किया कि जो बाकी बची हुई है 10 हमारी सर्विसेज बोलते हैं, यानी जो सहायक सेना होती है, इट्स नॉट अ कॉम्बैट फोर्स, जिसमें आपकी शामिल है किसमें, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन कोर, आर्मी एयर डिफेंस आर्टिलरी, EME, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विसेज कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर एंड इंटेलिजेंस. तो मतलब सभी जगह पे इनको किसमें रखा गया अभी तक, जो मतलब सहायक सेना यानी जो सहायक फोर्स है उसमें इनको रखा गया है. तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इनको लड़ाकू सेना में अगर आप अपने पक्ष देना चाहते हो, आई एम नॉट बीइंग अ मेल शोविनिस्ट, बीइंग अ सोल्जर, मैं आपको बताता हूँ. अगर हम कॉम्बैट रोल में हैं तो आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या है. सिनेरियो ये है कि हमें साल में 10 महीने हमें ऐसी जगह पे नौकरी करनी पड़ती है, जंगलों में, पहाड़ में, जहां पर हम 4-5 लोग एक पोस्ट पे होते हैं, और जो भी कुछ होता है हम आपस में मिल बांट के खाते हैं, ड्यूटी करते हैं. तो इन दैट सिनेरियो कैन यू एक्सपेक्ट अ वुमन सर्विंग अलोंग विद सोल्जर्स? नंबर 1. नंबर 2, अगर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की बात करें, आपको पता है बॉर्डर्स पे क्या होता है, शेलिंग होती है, और जो टेररिस्ट के क्या होता है, बैट एक्शन बोलते हैं हम. बॉर्डर एक्शन टीम होती है उनकी, पाकिस्तान की, जो कि मिलिटेंट्स और उनकी सोल्जर्स की मिलिट्री टीम होती है. आपको पता है बीएडिन के केसेस हुए हैं बहुत सारे. क्या होगा अगर कोई वुमेन सोल्जर को पकड़ के ले जाए या किडनैप करके ले जाए, तो आपको पता ही है हमारे देश में क्या बवाल होने वाला है. ऐसे बहुत सारे सिनेरियो. इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है लेडीज के. तो इन सभी को व्यूज में रखते हुए आप लोग अपने व्यूज दीजिए कि क्या कॉम्बैट रोल्स में लेडीज को आना चाहिए या नहीं. ये नॉट एज एन ऑफिसर बट आल्सो एज ए सोल्जर, दोनों तरीके से सोचिए आप, सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, जो लेडीज के तौर पे, मतलब जनरल सोल्जर के तौर पे. या ओके group, first of all, today's topic is actually it is totally based upon what we think about the like whether women should get enrolled in combat or not.
So it's totally our opinion. So see what I think about it, that actually sir told many reasons. See, the thing is ki definitely women should be enrolled, they should get the chance in combat, but the thing here is that there are many limitations which should also be kept in mind. So what happens ki they should get like they can be they should get a chance to get enrolled like an officer, they can lead a battalion or something. But if you are talking about that they should go on the borders and they should fight with the like our enemy, and so I don't think this is actually good, because see nature has made women and men different, and that's actually a logical thing. इसमें like there is nothing कि क्या कहते हैं कि अगर आप बोलोगे नहीं, there are many, you get many feminists who are actually like they are hypocritical, and they'll say कि no, women and men are totally same, and they have means in every way you can in every way they'll say that every women and men are same, but it's actually not the truth. Because you see in everyday like you can notice that though many feminists will say, they'll be like they'll say कि हाँ same है, but ऐसा नहीं है, nature has made us different. Or if we talk about कि if women are going on the borders and they are just going to fight, it's actually like they are totally independent, and like they are saying कि हाँ we should get a chance, and this will like bring equality between men and women. But they should also think na कि like see, if it is all about 1 month or something, then it's okay, but borders pe you are just going to go there for 6 months, and that also the weather is not the same as here, and you are like women are like sir told ki if they are just going to be abducted by the like the enemies, then what's just going to happen? You only think कि अगर यहाँ पे like men को अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो like पूरे इंडिया में इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं और पता नहीं क्या क्या सब लोग दंगे वंगे करने लगते हैं, एंड इफ women are just going to be there, तब क्या होगा? वो तो सोच मतलब you can think ये नॉर्मल सी चीजें होती हैं जो कि तक क्या कहते हैं कोई नहीं विमेन्स को नहीं जाना चाहिए, एंड दे आर टोटली केपेबल। ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी पे यहाँ पे शक किया जा रहा है, डेफिनेटली दे आर केपेबल, बट देयर आर मेनी पोजीशंस जहाँ पे वी कैन गो देयर एंड वी कैन प्रूव दिस द थिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि सी व्हाट हैपेंस कि अगर इफ मेन एंड women आर जस्ट गोइंग टू बी देयर, वहाँ पे मतलब इतनी स्पेस नहीं रहती है। if I'm taking example ki think if it is a winter time or like there is a camp and everyone has to see I have went to the camp and I have seen that in one room there are around 20 to more than 20 girls in one room, so you can only think कि वहाँ पे तो there are they will be like men भी होंगे women भी होंगी and they are just going to be together, तो वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस हो सकते हैं या ऐसा कुछ भी, मतलब यू कैन थिंक नो। और ये एक डेटा आया था कि इन आर्मी in 2016 or what there were 15,000 cases or something of sexual assault। तो ये मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमेशा माइंड में रख के कुछ भी स्टेप्स लिए जाते हैं, और इट इज ऑल अबाउट यहाँ छोटे मोटी चीज की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि पूरे की पूरे कंट्रीज की बात है। सी अगर आप बोलते हो, अगर मतलब कोई अगर ऐसा बोल रहा होगा कि विमेंस को जाना चाहिए, तो मैं उसको ये बोलूंगी कि अगर आप ऐसे मतलब सोच रहे हो तो भी तो जाके लड़ सकते हैं, इतना तो हम भी केपेबल हैं। बट द थिंग इज कि जब तक अभी मेंस हैं दे आर लाइक दे आर देयर टू फाइट, तो अभी वुमेन्स की वहां जरूरत नहीं है। दे कैन बी देयर बट दे कैन लीड द बटालियन, इट्स टोटली अपॉन देम। और बट ये है कि अगर बोला जाए कि वहां पे जाके फाइट किया जाए, I am disagree. I also disagree with you because काफी सारे if you are saying that जिन्होंने बैटल की है, ब्लेमिंग द नेचर हम बायोलॉजिकली फिट नहीं है, ये फैक्टर है, मगर हम इस बात
पे ये नहीं कर सकती कि अगर नेचर ने हमें डिफरेंट बनाया तो हमें भी डिफरेंट रोल ही प्ले करना चाहिए। और अगर एक बटालियन, एक रूम में, एक पोस्ट में अगर काफी सारे मेन सोल्जर्स और वुमेन सोल्जर को रखा जाए, तो अगर मेन सोल्जर वुमेन सोल्जर को एज अ सोल्जर देखे, ऐसे ना देखे कि वो एक वुमेन है, वो हमारे साथ रहेगी, और उनके अगर ईगो, मेल ईगो हर्ट ना हो काफियों का, तो शायद वुमेन को सेक्सुअल असॉल्ट ना हो। तो यहाँ पे पता है, मैं कृति यहाँ पे सिर्फ मेंस की बात नहीं हो रही है, ये पता है, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है यार, जरूरी नहीं है कि मेंस की साइड से हमेशा ऐसा कुछ हो। ये बात ऐसी है कि ठीक है, जरूर देखो, ये अपनी अपनी थिंकिंग के ऊपर होता है कि आप किसी चीज को, मतलब माना कि मतलब मेंस को ऐसा सोल्जर्स के एज देखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ही देखना चाहिए तो इतने केसेस आए क्यों अभी तक? द थिंग इज ना। और यहाँ मान लो कि ठीक है, आई एग्री, आई ऑल्सो एग्री कि मान लो अगर गई भी, वो ठीक है, अपने सोल्जर्स पे, इंडियन सोल्जर्स पे भरोसा है आपको, एंड व्हाट अबाउट कि जो आपकी एनिमी है, आप उसको क्या करोगे? अगर वो आपको मतलब विमेंस को लेके चली जाती है, एंड तो आप मतलब क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाट यू विल डू? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे लड़ाई होती क्यों है? सिर्फ सेफ्टी के लिए हो रही है। विमेंस सॉरी ma'am, if you are kindly doing a GD, so you should be aware of the facts first. First, you have to be aware of the facts. So kindly correct your data. And you said कि आप 15,000 cases आ चुके हैं sexual assault के। वुमेन ऑफिसर जो अपनी इंडिया में है वो 3,700 है, तो 15,000 केसेस कैसे आए मेरे को नहीं पता। दूसरी बात, मैंने ये ओके ठीक है, तो हाँ डेट इंडिया के नहीं आए इंसान तो हर जगह वही है ना। सी मैम वेग आंसर्स इंडिया के नहीं आए, कहीं तो आए थे। वेग आंसर्स मत दीजिए। आपने डेटा इंडिया का बताया, तो प्लीज यू शुड बी सेइंग कि क्या बोलते, जो डेटा है वो इंडिया का होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा प्लीज सही करके लेके आइएगा। आई एम नॉट क्या बोलते, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपके पॉइंट से, मैं बता रहा हूँ कि डेटा जब भी आप लेके आते हो तो आप प्लीज वो करेक्ट डेटा लेके आया करिए, क्योंकि इट्स जीडी, ये हम कोई डिबेट पे नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कोई टीवी डिबेट नहीं चल रहा है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर योर थैंक्स, दोबारा ध्यान दूंगी मैं। नहीं, अब जीडी होने नहीं वाला। सॉरी, मैं क्या बता रही थी? तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे खुद, हम एनिमी की बात छोड़ दें कि एनिमी को अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो तो हम छोड़ ही देते। जब तक इंडिया में वो अपने पोस्ट में, तो वहां उनकी कैपेबिलिटी है, मगर वहां पे हमारे खुद के सोल्जर पे हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कैसे छोड़ सकते हो यार? आप बॉर्डर पे भेज रहे हो, आपको भेज रहे हो, उनको लड़ने के लिए भेज रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूंगी। See, I agree with Neha here. Why? Because literally जो तो उसने जो बोला है कि नेचर ने जो जिस तरीके से बनाया है, the biological things, वो सही में प्ले बहुत क्या बोलते वाइटल प्ले क्या बोलते रोल रहता है आपके आर्म फोर्सेस में। कॉम्बैट रोल्स में आप इसलिए नहीं भेज सकते, रीजन देखिए, कॉम्बैट रोल में भी वो भी ऐसी जगहों पे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कभी इंडिया ने ट्राई नहीं किया। अगर आप इंडियन नेशनल आर्मी जो आजाद हिंद फौज है, उसमें रानी झांसी रेजिमेंट खुद की एक रेजिमेंट थी, हेडेड बाय लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो अगर इंडिया उस समय 1940s के एरा में अगर कर सकती है, तो अभी भी कर सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर आपको करेक्ट डेटा के हिसाब से बताऊं तो 1992 में जब भी स्टार्ट हुआ वो ठीक है, अलग बात, बट इन 2007 ऑल फीमेल पीस कीपिंग फोर्स गई थी इंडिया से लिबेरिया। यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां पे स्टेशनड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा नहीं है कि कॉम्बैट रोल्स है, नहीं है वहां पे। देखिए, जैसे सीआरपीएफ की खुद की बटालियन है, असम राइफल्स के खुद के बटालियन हैं, वुमेन केवल हेडेड बटालियंस हैं, वो भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जहाँ पे दंगे बहुत अच्छे से होते हैं। दैट इज नक्सलाइट एरियाज में भी वुमेन फोर्सेस हैं वहाँ पे। इवन लिबेरिया में, जैसे कि इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा पर्सनल भेजती है, इंडिया के खुद के बटालियंस हैं, खुद के क्या बोलते हैं कमांडिंग यूनिट्स हैं जो वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में जो वुमेन हेड करती है। सी बट दिक्कत वहाँ कब होती है? वी नीड टू चेंज सोसाइटल। यस सर। अखिल, सॉरी टू डिसरप्ट यू। अच्छा, सभी को बोलना मैंने, अभी ये टाइम ज्यादा खींचेगा, तो अभी सेकंड जो पार्ट के लिए
फिर लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, तो आप लोग अभी टाइम खत्म हो जाएगा तो आप लोग सेकंड लिंक पकड़ के दोबारा से आ जाना ग्रुप में। ओके ऑल पार्टिसिपेंट। ओके सर, ओके ओके कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग। यस सर। हाँ सर, एंड जो भी था कॉम्बैट रोल्स में पहले भी इंडियन आर्मी मतलब इंडियन एयरफोर्स, अगर इंडियन की सिर्फ बात करें इंडियन आर्म फोर्सेस में वो पहले से था। गुरिल्ला वॉर्स में भी हम लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया था, अगर आप बात करें हिस्ट्री में तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी के समय ऑल वुमेन वॉरियर्स थे उस समय। और फिर मैंने आपको जैसे बताया रानी झांसी रेजिमेंट जो क्या बोलते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल के थ्रू था। चेंजेस तब आए जब प्री पार्टीशन मतलब पोस्ट पार्टीशन के बाद सोसाइटल चेंजेस आए। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। The army is ready to the armed forces as an organization is ready to accept women in combat roles, but as in society हम लोग नहीं accept कर रहे हैं। सोसाइटल चेंजेस पहले लेके आना पड़ेगा कि हाँ सोसाइटी क्या सोच रही है। अगर आपने गुंजन सक्सेना मूवी देखा है, अगर अनबायस्ड ओपिनियंस आप अगर देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या बताया गया था। लोगों ने उसको कंट्रोवर्शियल बता दिया, बट उन्होंने सही से देखा नहीं कि हाँ उसमें दिक्कत क्या होती है, सोसाइटल चेंजेस। क्योंकि आर्मी से भी कोई जा रहा है तो एक सोसाइटी से ही जा रहा है, वो अपना माइंड पहले से मेकअप करके गया हुआ है, नहीं हमें औरतें नहीं पसंद, हम औरतों के कमांड में नहीं आ सकते, हम उनको सैल्यूट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो सोसाइटल चेंजेस पहले आपको बदलना पड़ेगा। एजुकेशन के थ्रू ये होगा, एजुकेशन में बताना पड़ेगा। और आपने जैसे बताया आपने कि फेमिनिस्ट, उनको फेमिनिस्ट नहीं बोलेंगे, दे आर फेमिनाजीज। फेमिनिस्ट वही होते हैं जो दे बिलीव कि जो मेन एंड वुमेन आर इक्वल ड्यू टू इंडिफरेंसेस। उनको पता है कि इंडिफरेंस है, बट देन टू कुछ चीजों में वो लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्बैट देखिए अगर आप बताएं तो परमानेंट कमीशन there is a question, may I? yes sure Actually you said कि अगर एजुकेशन जो है, अगर मतलब एजुकेशन और ज्यादा मतलब वुमेन्स को पढ़ाना चाहिए, ऐसा जो भी सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए, तो डू यू थिंक कि अगर एजुकेशन मतलब इतना ज्यादा सोसाइटी एजुकेट हो जाती है, देन वुमेन शुड बी अलाउड टू गो देयर मतलब टू फाइट एंड ऑल? क्या ऐसा why not why not रियली व्हाई नॉट? क्यों क्या बोलते हैं आप? फिर शक कर रहे हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियल्स पे। दैट मीन्स कि आप शक कर रहे हो। उन्होंने खुद की रेजिमेंट, उन्होंने क्या बोलते खुद एक रेजिमेंट बना के छोड़ दिया कैप्टन सहगल के अंडर कि आप लड़ो। दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग हिम टू। एट दैट मोमेंट आप अगर क्वेश्चन इस चीज के लिए आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्वेश्चनिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू कि उन्होंने उस समय क्यों ऐसा सोचा। ऐसा कुछ नहीं है, बट सी द थिंग इज यार, यहाँ सेफ्टी की भी बात होती है। मान लो तुम्हारी मतलब हमारी सुनिए सी वही मैं बोल रहा हूँ, सेफ्टी की कैसे बात आई? आप सोसाइटल चेंजेस लाओ, लड़ने वहां कैसे बात आ गई? ठीक है, अपने इंडिया में सोसाइटी मतलब सोसाइटी में मान लो अपग्रेडेशन होता है, यहाँ पे एजुकेट किया जाता है, तो बाहर का क्या होगा? क्या आप वहाँ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ, अगर यहाँ पे बोल दिया जाता है कि यहाँ से जाओ भाई विमेंस को। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग बीच में बोलिए, रिक्वेस्ट मत करिए। ये जीडी है, जीडी में आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको खुद अपना चांस लेना है। अगर नेहा, अखिल, संगम और कृति बोल रहे हैं तो इनका जो नीचे पॉज आता है, पॉज को वो लीजिए, आप पॉज का फायदा उठाइए, आप भी घुसिए बीच में जीडी में। ये ऐसा थोड़ा ना कि मेरी बारी नहीं, आपको अपनी बारी क्रिएट करनी पड़ेगी सभी पार्टिसिपेंट, मैं ये बोल रहा हूँ। कोई और बोलेगा? यहाँ पे मेन दिक्कतें क्या है? मेन दिक्कतें क्या है कि यहाँ पे आपकी एक फ्रेमवर्क नहीं बनी है कि वुमेन इंडक्शन कैसे करें कॉम्बैट रोल्स में। हाँ, तो ये सही से प्रॉब्लम ये है कि ये बनी नहीं है और ये बन भी नहीं रही है। इसे बना तो चाहिए, अभी तो नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट्स हर जगह चल रहे हैं। आपने देखिए वुमेन कॉम्बैट रोल्स अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आपको कैसे करोगे? पहले ये बताओ। आपने मिलिट्री पुलिस में क्या बोलते हैं जनरल ड्यूटी में पोस्ट डाल दिया। You're not audible. वुमेन फाइटर, वुमेन को प्लेन उड़ाने दिया गया था इन आर्मी सबसे पहले, आर्मी ने एयरफोर्स, ओके, तो वहाँ पे 7 वुमेन को एनरोल किया गया था सबसे पहले, और 7 में से none of them exist till today। अभी कोई नहीं है, क्योंकि
आर्मी वुमेन को एक्सेप्ट करती है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी गवर्नमेंट का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि पहला तो हम वुमेन बायोलॉजिकली फिट नहीं कृति है, आपका कनेक्शन डिस्टॉर्ट है। यस सर। हाँ, your voice is not audible. कनेक्शन Your आपका बहुत net हुआ है, is डिस्टर्ब है। हाँ, yeah, your net is unstable, I think so. It's गायब हो गई यार. So Okay, actually guys, you were continue. saying something, no? या सी फ्रेमवर्क एक बनना चाहिए। अगर आप कॉम्बैट रोल्स में भी अगर आप लेके आ रहे हो लोगों को, यू नो, इक्वल चांसेस दे रहे हो, तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि किस तरीके से आप लेके आओगे। आपने क्या किया, आपने पहले यू नो मिलिट्री पुलिस में आपने एंट्री दी गर्ल्स के लिए, वहां पे आपने एक बेसिक लेवल पे सिखाया कि कैसे आप करते हो, ठीक, कैसे आप यू नो आर्मी में कैसे आप जीते हो। तो आपने एक वुमेन बटालियन बना दिया, वुमेन कमांड बना दिया, सब कुछ आपने क्रिएट कर दिया। सी दिक्कत यही हो रही है कि अभी भी यू नो एक अभी भी वो चल रहा है, एक सोसाइटल यू नो चेंज नहीं हुआ जहाँ पे मैन थिंक्स कि हम कैसे वुमेन के नीचे झुक जाएं, कैसे हम नीचे उनके काम करें। अभी भी ये चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी ये सुनने में आ रहा है। आप ये बता दो कमांड पोस्ट में, जैसे यू नो उधमपुर एरिया में, उधमपुर सेक्टर्स में, और वहाँ पे जो क्यों नहीं वहाँ पे वुमेन ऑफिसर्स कमांड नहीं कर रही, वहाँ पे क्यों मेल ऑफिसर्स ही कमांड कर रहे हैं। पहली बात तो यू नो कॉम्बैट रोल्स में जैसे कॉम्बैट रेजिमेंट्स है अपने, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड रेजिमेंट, उन सब में तो है ही नहीं, वुमेन ऑफिसर्स का रोल ही नहीं है वहाँ पे, तो मना है सीधे सीधे। बाकी जितने भी है, बाकी जैसे आपके आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स हैं, यू नो जेएजी है, जो क्या बोलते हैं आपके जो So अखिल जितने भी you know, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में है। एक अखिल तुम्हें पता है एक ऐसी बात थी कि अगर मतलब यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट क्या ऐसा नहीं सोचती, देखो बाहर फॉरेन में क्या है कि वहां पे बहुत सारे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं आर्मी में जहाँ पे जो कि इंडिया में विमेंस को नहीं दिए गए हैं। तो मतलब क्या गवर्नमेंट ये सब ऐसा नहीं सोचती होगी? वो लोग भी तो यार सोचते होंगे, बट वो मतलब कुछ भी मैंने करने से क्या पहले बोला, उनको मैंने मेरिट्स हाँ प्लस तो डीमेरिट्स ये दोनों देखना पड़ता है ना। एक मिनट ये अब बताओ, ऐसा मैंने तो है नहीं गवर्नमेंट को कि you ब्लेम can किया? just I didn't blame the government. See, I didn't blame the government for this. I blame society for this. कि सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, तभी वुमेन कॉम्बैट भाई रोल्स आ सकते हैं। मैंने ब्लेम की तो बात की ही नहीं ना यहाँ पे। आप ही तो ब्लेम देखो, बोले ब्लेम गवर्नमेंट। की यार तुम सीधे एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों जंप कर रहे हो? सी आप ही आई ने एम जम जस्ट किया, जम बता रही हूँ। आप ही आई एम ने जस्ट जम किया कि आप I'm क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। blaming each other. Stop I'm just blaming keeping each other. अरे यार I'm just giving a Stop blaming point, each other. nothing else. What happened? I want to Okay. add a point. I want to add a point. Yes, 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 Sangam. Yes, of I course. think there is a problem from the women's side also, because a Lieutenant General, a retired Lieutenant General from Army, he said that once he became the trainer of raw officers. Raw maybe the intelligence group or organization maybe. Yeah. So Intelligence branch of Intelligence group, we understand. in that group there were army officers, and in between them there is a woman, a lady officer, and the problem was there with that she did not allow her undergarments to give it to the laundry to be washed, and she demanded a separate bathroom toilet. So think if they were allowed in the combat forces, then how they would uh, um, share their bed or anything with the male soldiers, and in the combat areas, combat works, it is required to be one, and they have to live together, because in army, in the infantry stations is not at a fixed place. They keep on changing frequently. So they live in Okay, very Sangam, harsh Sangam, conditions Sangam, in forest areas. Sangam, Yes, संगम, yes, sir. बी Yes, स्पेसिफिक, sir. बी स्पेसिफिक। आप बोल सकते हो कि लेडीज के लिए आपको अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ये Yes, एडमिनिस्ट्रेटिव yes sir, yes, लेडीज के लिए अलग से। yes sir, हाँ, sir एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं अगर हम वुमेन बटालियन, ऑल वुमेन बटालियन या ऑल वुमेन कमांड्स हम बना दें। हम वो कैटर कर सकते हैं, वो इश्यूज हम कैटर कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप बात करें सियाचिन ग्लेशियर में, अगर आपको पोस्टिंग लगती है आपकी
क्योंकि वहां पे रहना दैट मीन्स द टफ एकदम टफेस्ट मेंस वहां पे जाते हैं, वहीं पे जाके रह सकते I हैं। know, आपको I मुश्किल know. से 4 पोस्ट है आपके सियाचिन में, ये सर दैट 4 पोस्ट हैं सियाचिन एरियाज में, वहां पे कुछ लोग रहते हैं वहां पे, तो वहां पे कैसे आप वुमेन कैसे हैंडल कर पाएगी? That is -40°C. So -43. यस सर। yes, तो वहां पे -40. Yes. लेकिन ऑन द रिकॉर्ड -89 तक पहुंचता है। Yeah, -59 accurate. तक, You yes sir, yes, sir. और You are saying accurate. 59 तक, yes sir, -59 And तक there is पहुंचता है, also, as an record। there is also chances कि enemies जो होते हैं वो लेडीज के ऊपर जल्दी अटैक कर सकते हैं। लाइक अगर मेंस रहते हैं तब ऐसा होता है कि मेंस जो होते हैं वो इधर अगर मतलब नहीं अटैक करते जल्दी, लेकिन अगर देर से कि हाँ लेडीज ऑफिसर्स है वहाँ पे, तो देर इज अ चांसेस कि अटैक्स ज्यादा हो सकते हैं। I agree. I और agree एक with चीज, this. और Because एक चीज जैसे आज हमारे मैं जैसे पूरे वर्ल्ड में ना वुमेन्स को कितना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है हर बात पे, कि पूरे से मेंस हमेशा से डोमिनेट करता है और डोमिनेट करते हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, तो मेंस लाइक टू डोमिनेट। सो That आई is एम सेइंग because कि of हाँ जो क्या है कौन है बीच में, किसका म्यूजिक बज रहा है? sorry sir, so that is because of basically patriarchal society, that is basically because of Yeah, no? patriarchal society। तो वो Yes, yes, you are right. patriarchal society है, वो देखो आपको आपको वो change, क्या बोलते you can हैं, change a society, you can change, you अगर आप कभी चेंज करने जाओ ना, आप अपने माइंडसेट नहीं चेंज कर पाओगे, तो आप एक कंट्री और एक वर्ल्ड का माइंडसेट तो अलग नहीं ही कर बात है। सकते। हाँ तो अरे बेसिकली वही कंट्री दिक्कत हो रही है, तो कंट्री और आपको उसकी तो बात छोड़ो, घर के, पहली बात तो घर के फैमिली मेंबर्स आधे लोग एग्री करने वाले हैं कि बेटा जाओ, अगर बॉर्डर पे जाना है तो आधे लोग बोलेंगे नहीं बेटा रहने दो, मत जाओ, कोई और जॉब कर लेना, वो बेहतर है। ये आपको अभी कैसे यार ये ऐसा, हाँ अगर मान लेते कभी हैं कि भी हमने पापा से अच्छा पूछना। उनको भेज भी दिया बॉर्डर पे, और मान लेते हैं कि दैट लेडी ऑफिसर, दैट लेडी मेट एक्सीडेंट, जिसको बोल सकते हैं हम रेप और व्हाट, एक क्राइम होता है उसके साथ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन वो लेगा? जैसे एक लेडी के साथ कुछ भी होता है तो पूरी कंट्री में। जसमीत, Your voice is not clear. जसमीत आई जस्ट वांट टू प्लीज, क्या बोलते हैं, कभी भी ये जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको एक्सीडेंट नहीं बोलना कभी, ठीक है? दैट इज अ क्राइम, इंक्लूड दैट इन अ क्राइम, सो डोंट क्लैरिफाई करने में तो यार नहीं कर। सोसाइटी चेंज होती है, आप अपना माइंडसेट यहीं से चेंज करो, यहीं से चेंज होती है। आप यहीं से आप चेंज नहीं करोगे, कहाँ से आप कर पाओगे? आपको अपने माइंडसेट में रखना है कि नहीं, दैट इज अ क्राइम। अच्छा एक बात बोलूं, देखो मैं ऐसे मतलब मन में आ रही थी तो मैं सोची बोल दूं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि एजुकेटेड इतना नहीं थे, और लाइक अभी एग्जांपल ले लो कि अभी कितने लोग, मतलब तभी हम लोग की काफी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, तो क्या पहले के कंपैरिजन में अभी क्या ऐसा जो भी, अब आपने बोला है कि वो नहीं बोल सकते, तो मतलब जो असॉल्ट्स होते हैं जो भी हैं, तो क्या पहले पहले जो होते थे वो क्या मतलब कम होते थे? क्योंकि दे